and its counseling. I involved into one-to-one counseling also, involved into abroad education counseling, admission process guidance for engineering, medical, architecture, design, and many more fields. Currently, I'm running 18 WhatsApp group in which more than 5,000 plus parents are there. We are updating all the parents on each and every update of education related. We have majorly 8 to 12 standard students, parents in all the 18 groups. So this is about my activity. Now let me introduce today's speaker, Mr. Tejas Patil. Mr. Tejas Patil, founder and director at Yashotej Academy. He is a B Electronics and he is a defense exam analyst. Mr. Tejas Patil founded Yashotej Academy in 2015 with a firm vision of guiding students toward joining Indian Defence Forces. Journey started with a batch of 7, now turned into a mission. With almost 45% results from the very first batch, he received accolades for his excellent teaching methodology from many officers, students, and parents from all over India. Most of his staff have cleared almost all defense-related exams several times, which helped them in gathering advanced knowledge about these exams. Experienced and learned teachers are strongly encouraged to nurture the students. Yashotej Academy persistently seeks and adopts innovative methods to improve the quality of education on a consistent basis. Within first 5 years of their hard work, YTA becomes the first choice of NDA aspirants. Top class education and consistent results are two main reasons behind it. Though they have top class faculty for every subject, detailed analysis of exams, rigorous practice hours, continuous test, conceptual learning, and periodic counseling session makes foundation of cadets extremely strong. Despite of having very less resources in the start, many armed forces officers showed their faith in their education system, taking us to the top in this field. This is very nice work, Tejas sir. I can say congratulations and all the very best. Thank you, ma'am, for such a wonderful introduction. Most welcome, sir. Now I will request to take the charge and please give us the overview of NDA, basic information about the NDA, and then let's take all the questions we have like got many responses from the parent. So we will take each and every question of parents and students. So hand over to you, sir. All right, thank you. So again, good evening. Just recently मैंने देखा अभी कुछ और लोग ऐड हुए हैं. So we are discussing defense forces here, right? So we'll have to be a little disciplined. So what we'll do, we'll have a session for 20 minutes. After that, you can just throw your questions in the chat window, and obviously Reena ma'am will take care of it. So guys, before we move forward, I have a little presentation for you, right? I don't want you to get bored. So yes, we are going to enjoy it for sure. We will be using, as said by Reena ma'am, we'll be using English and Marathi as well. I hope इथे भरपूर लोक मराठी असतील. So it will be very easy for us to communicate, right? So we'll start with the presentation. Reena ma'am, I'll need your confirmation whether you have been able to see the presentation or not. Yes. Are you able to see the presentation? Okay, all right. Okay. So guys, the very important portion, right? So before I start, I would like to give my little introduction. मैम ने तो दिया ही है, but मैं थोड़ा informal introduction आपको दूंगा. Basically, I'm an engineer. मैंने engineering pursue किया था. I had given NDA when I was in 11th class. Like many of you boys, मुझे भी NDA क्या है थोड़ा भी पता नहीं था. I was totally unaware of the fact कि NDA होता क्या है. All I used to know is army मतलब जवान, army मतलब guns, army मतलब tanks. I had no idea कि आर्मी में कैसे लोग होते हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या होता है, उनका पर्पस टुवर्ड्स लाइफ क्या होता है, ये चीजें मुझे पता नहीं थी. When I get to know about these things, I realized, oh my God, these are the only people who are living their life to the fullest. So the most important part, why defense forces? सर हमें defense forces क्यों choose करना है? So मैंने कुछ points note down किए हुए हैं. We'll just discuss those points. As I have only 20 minutes, I'll just summarize the points as early as possible, right? Before I move forward towards these points, ये कुछ points हैं.
दियर सम पॉइंट्स जो बेसिकली हमें इंडियन डिफेंस फोर्सेस का एक टेस्ट देंगे, बट above all एक डिस्कस करते छोटी सी चीज. When I was a kid, right? When I was a kid, I was in 5th class and I used to play a very good cricket, है ना? आपको तो पता ही है, this is India. इंडिया में सिर्फ क्रिकेट खेलता है. And I am from a very small town called Chikhli. So वहाँ पे मैं काफी अच्छे से क्रिकेट खेल लेता था. I used to think I'll become a cricket player someday, right? Unlike all the parents, like all the parents, मेरे मम्मी पापा जो भी थे, they used to tell me कि अरे क्रिकेट सिर्फ 11 लोग खेलते हैं, सिर्फ 11 लोग खेलते हैं. What we will do is you study hard, you complete your 10th with good marks, which I did. You complete your 11th and 12th with good marks, which I did. You complete your engineering with good marks, which I did. After I complete my engineering, मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सोचनी पड़ी कि एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग जो मैं सोच रहा था, क्या ये इंजीनियरिंग प्रोफेशन मुझे दे पाएगा? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, but can this engineering profession give me what I really wanted? I think we have an artist here. His drawing is quite good. I would request you not to do it because we will be having a lot of pictures of armed forces, and we should respect them. We should respect our nation. All right. So guys, सबसे important part यही था life में कि आगे मुझे करना क्या है. मुझे पता था I can go there, I can sit on my computer, right? I can enjoy. Tejas sir, sorry to disturb you. Can you just note that because somebody is doing this scratching? So what am I supposed to do with it? Upper side view option, you can just note. View option. I cannot find it actually. At the top. Note. Okay, I got it. Yeah, you can just select that. Select. Yeah, a note. Just a note. Yes, I clicked on a note. But now? Okay, disable it. Disable. Is there any option? No. Disable annotation is the like a note. In a note only you can disable that option. Right, I have clicked on a note now, and there are options like mouse, select, text, draw, stamp, spotlight, eraser, format, undo, redo. No, disable should be the option. So the other clear all drawings, but yeah, I'm not able to do that. No problem. We can just. Sir, you can click on above bar on more, and there the option is there that disable annotations. Disable participants annotations, right? Yes. Yes, yeah. Okay, chalo. Thanks a lot. What's your name? She's my daughter actually. Okay. Wow. Thank you. Yeah. Right. You can continue. Yes. Perfect. Thanks a lot for your help. Maybe ऐसे था. Actually, I was little naughty, है ना? If you're अगर आप इतने naughty हो, I think defense forces is really good choice for you because they'll make you disciplined for sure. So again, where was I? I was telling you, it is very essential to have a purpose in life, right? Which armed forces will give you. बाकी जगह पे jobs होते हैं, बाकी जगह पे काम होता है, work होता है. In defense forces, it is your duty. It is not job, it is not work, it is a duty. आपने देखा होगा, आज बैंक में स्ट्राइक हो गया, आज यहाँ पे स्ट्राइक हो गया, आज वहां पे स्ट्राइक हो गया. कभी सुना है आर्म फोर्सेस में स्ट्राइक हुआ है? अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, what will happen next? There are no strikes in armed forces because it is one of the most reputed organization in the world. कुछ पॉइंट्स है जो मैंने निकाले हैं, उन पॉइंट्स में काफी प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी हैं, काफी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स भी है, तो डिस्कस करते हैं. सिंपल सी बात है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिफेंस फोर्सेस इज प्राइड. प्राइड से जीना है ना दोस्तों, यू शुड जॉइन डिफेंस फोर्सेस. आई एम द डायरेक्टर हियर एट यशो तेज इंस्टीट्यूट. कभी आके देख लो, यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द जिस्ट व्हाट काइंड ऑफ सिंसियरिटी इज हियर, राइट? सो प्राइड इज समथिंग which you will be getting in the defense forces. Professional advancement. I'll just tell you one simple thing. I'll give you one simple example. You'll love it, right? Usually क्या होता है, जब मैंने इंस्टीट्यूट चालू किया था, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में मैंने इंस्टीट्यूट चालू किया था, काफी ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिनके लड़के मेरे पास आते थे, राइट? मेरे पहले ही बैच में 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 3 रिकमेंड हो गए. आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो द रेशियो और नॉट. इंडिया में से 8 लाख लोग ये एग्जाम देते हैं, उसमें से 350 लोग सिलेक्ट होते हैं. इन इंडिया देयर आर डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट्स. So every second डिस्ट्रिक्ट में से एक लड़का होता है. मेरे 3 लड़के हो गए थे. At that time I started thinking कि शायद ये ऑफिसर्स के लड़के थे इसलिए हो गए. I'll give you second example. There's a student called विशाल, है ना? His dad was एक शासकीय कार्यालय होते थे, ये बड़ी सफाई कामगार.
he came to me. He's like, sir, my father earns some 8,000 rupees per month में के 4,000 वो ड्रिंकिंग में स्पेंड कर देते हैं, राइट? तो मैं आपकी फीस तो कभी पे नहीं करूँ पाऊंगा. I was like कि yes, you cannot pay your fee, but you'll have to pay something, right? गुरु दक्षिणा तो लगेगी. He used to clean my offices. He used to clean the utensils of other students. ये सारे काम करके, ये सारे काम करने के बाद he cleared his NDA written exam. उनके मॉम डैड को पता भी नहीं था व्हाट इज एनडीए एंड ही गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए. सो इट इज नॉट लाइक कि आपके फादर या मदर डिफेंस फोर्सेस में होने चाहिए. ऑल यू नीड इज पैशन, राइट? आई हैव सीन द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ब्रिगेडियर्स failing these exams, and I have seen sons and daughters of farmers getting recommended for this service. As I said, ये एक सर्विस है. अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है, you'll definitely make it, right? अगर आप विशाल को 5 साल पहले देखते, जब वो उसके गांव में था, अगर विशाल को आप अभी देखोगे, you'll notice one difference. He is extremely confident about his life, है ना? उसने उसके जैसे 10-15 लोगों को और आगे वो लेके आया हुआ है. शायद एनडीए ना होता, शायद ये अपॉर्चुनिटी उसके सामने नहीं आती, तो शायद वो अभी भी वही कर रहा होता जो उसके फादर कर रहे हैं. अंडरस्टूड? सो सेकंड जो पॉइंट है, दैट इज प्रोफेशनल एडवांसमेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल सी योर ग्रोथ व्हाइल बीइंग इन आर्मी. जब आर्मी में रहोगे ना, तब खुद का पर्सनैलिटी ग्रो होते हुए देखोगे, खुद की इंग्लिश ग्रो होते हुए देखोगे, खुद के ओरिएंटेशंस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, थिंकिंग, आइडियोलॉजी ग्रो होते हुए देखोगे, राइट? अगेन द थर्ड पॉइंट इज प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट किसको पसंद नहीं होता है, राइट? यू विल receive respect only in defense forces, right? Because there is no corruption, right? अगर होता भी होगा तो बहुत small scale में होता है. Those people are doing the duty, not doing the job. Again, I'm repeating. Variety and adventure. Adventure किसी को पसंद नहीं होता है. अगर तुम आर्मी में जाते हो, तुम ऐसे ऐसी चीजें एक्सप्लोर करोगे जो तुमने लाइफ में कभी देखी भी नहीं है, शायद फिर तो कभी देखोगे भी नहीं, है ना? मैं काफी ऑफिसर्स के कांटेक्ट में हूँ, है ना? I must have met some thousands of officers till date. ठीक है? एक ही चीज मुझे सब में कॉमन लगा, दे आर फुल ऑफ लाइफ. लाइफ कैसे जीना है मैं उनसे सीखता हूं, राइट? एट द एज ऑफ 70 ऑफिसर टेल्स मी कि तेजस वी शुड गो फॉर अ ट्रेक. और वो एक एनर्जी होती है, वो एक ओरिएंटेशन होता है. जहां पे हम सुबह उठ के पेपर पढ़ के न्यूज देखते हैं, वहां पे वो लोग एट द एज ऑफ 70 दे रीड द न्यूज़पेपर एंड दे go for exercise and they go for adventure and they go for something else. Job security is always there. जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए, है ना? जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, वो होता है ना, सर वो बाकी सब कुछ ठीक है, पैसा कितना मिलेगा? यस, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? वंस यू गेट द मनी, ऑब्वियसली we'll have to choose wife for him, right? We'll have to choose husband for her. So money is important, and believe me, they are handsomely paid. And money is not the only important part here. Post retirement benefits are also there, right? अगर आप रिटायर होते हो, you retire with a rank. ये कहाँ पे नहीं होता है, ये कहीं पे नहीं होता है. If you retire, you retire. That's all. But in defense forces, if you're colonel, you'll be colonel lifelong, right? At least you'll be able to utilize that rank lifelong. Facilities for inter-family. Yes, we know that ये भाई job जो है, ये बहुत heavy. It is not going to be easy. आपको जाना पड़ेगा, है ना? आपको सर्व करना पड़ेगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस को अलग-अलग फील्ड्स में, है ना? सो आपकी फैमिली की तरफ कौन देखता है? तो गवर्नमेंट देखता है. कभी जाओ आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में, you'll feel proud about yourself. Then there is physical fitness. Yes, who don't like physical fitness? अगर lifelong physical fit रहना है, I still remember हमारे यहाँ पे सैम मैनिकशॉ करके एक जनरल थे, right? He became field marshal later, है ना? Field marshal is like the biggest post in Indian defense forces. He was field marshal lifelong. जब वो 90 एज के थे, तब मैंने उनका स्पीच सुना था, and I'm like, I want to be like that person when I'm 90, right? Then self introspection, जो कि हर फील्ड में लगता है. So it is very essential. अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना है, you'll have to know yourself, है ना? बहुत एक चैलेंजिंग लाइफ मिलेगा जो तुम्हारे एवरेज लाइफ से बहुत डिफरेंट होगा. अगर आप डिफेंस फील्ड से हो तो इट विल बी एवरेज फॉर यू, लेकिन आप सिविल फील्ड से हो, you'll realize, oh my God, such a huge challenges, right? So, sir, what is NDA? We'll be talking majorly about NDA. Before I go forward for NDA, जब मैम ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, I came to know that there are so many girls who wants to join these defense forces as well. तो मैं थोड़ा सिंपल करके बता देता हूँ. So डिफेंस फोर्सेस का ज्वाइन कैसे करना है? तो बहुत आसान है. आपके अपॉर्चुनिटीज होती है आफ्टर 10th के बाद आप 11th 12th प्रिपेयर कर लो. सो आफ्टर 12th यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग दीज इंस्टीट्यूशंस. सो 12th के बाद देयर इज अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, और ये इंडिया में का नहीं, एशिया में का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है. अगर आप अभी के जो भी है, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स देख लो, चीफ ऑफ इंडियन नेवी देख लो, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी देख लो, ऑल दी चीफ्स आर फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी. ठीक है? सो बेस्ट एंट्री
अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में जाना ही है तो आपके लिए बेस्ट एंट्री जो है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी. यस, देयर आर टेक्निकल एंट्रीज लाइक TES, राइट. देयर आर टेक्निकल एंट्रीज लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन देयर आर टेक्निकल एंट्रीज लाइक TGC, देयर आर टेक्निकल एंट्रीज लाइक UES, है ना, CDS भी होते हैं. बट आफ्टर 12th सिर्फ एनडीए ही डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं. एनडीए में से ही डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एज अ मेल कैंडिडेट ज्वाइन करना है तो. टिल डेट अभी तक लड़कियों को लिए एनडीए में स्पेसेस नहीं है. यस, देयर इज बीन अ, मतलब उनकी बातें चल रही है आगे कि वी शुड अलाउ देम और नॉट, बट टिल डेट सिर्फ लड़के ही एनडीए जा सकते हैं. सो सर ये एनडीए बेसिकली होता क्या है? सो इट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी. सो बेसिकली इट इज अ ट्राई सर्विस एकेडमी. ट्राई सर्विस, नाम में ही ट्राई. व्हाट डज इट मीन बाय ट्राई? इट मींस 3, राइट. तीनों सर्विसेज का इंस्टीट्यूट एशिया में का ऐसे अकेला इंस्टीट्यूट है जो लोगों को आर्मी से भी ट्रेन कराता है, नेवी में भी ट्रेन कराता है और एयरफोर्स में भी ट्रेन कराता है. दिस इज द ओनली ट्राई सर्विस एकेडमी इन द एशिया राइट नाउ. ठीक है. तो सर बेसिकली होता क्या है? आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स. 12th में आप एनडीए का एग्जाम दोगे, अगर क्लियर कर दिए, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, वो सारी प्रोसेस में डिटेल में डिस्कस करूंगा ही, तो आप चूज कर सकते हो आपको आर्मी जाना है, नेवी जाना है, एयरफोर्स जाना है, लेकिन ट्रेनिंग आपको तीनों चीजों का मिलेगा. अंडरस्टूड? यू विल बी स्टेइंग विद दीस बॉयज. तो सर अगर मैंने आर्मी चूज कर लिया तो मेरा ट्रेनिंग कितने साल का होगा? तो जो एनडीए का जो पूरा ट्रेनिंग होता है ना, वो होता है 3 साल का ट्रेनिंग. तो सर 3 साल में मैं अफसर बन जाऊंगा क्या? नो, राइट. इट्स मोर लाइक अ ग्रेजुएशन. नाउ यू विल बी गोइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट. सो पोस्ट ग्रेजुएशन कहां होने वाला है सर? सो लेट्स टॉक अबाउट अ पर्सन, है ना. विल टॉक अबाउट निखिल विटेकर, राइट. सो लेट्स से निखिल, अगर निखिल है उसको एनडीए ज्वाइन करना है, सो वो 12th में एनडीए देगा. अगर वो एनडीए रिटन क्लियर करता है, he'll go for SSB, he'll go for medicals. अगर वो होता है and he wants to join for army, he wants to go for army. अगर उसे आर्मी ज्वाइन करना है तो वो 3 साल का ट्रेनिंग एनडीए में आर्मी से लेगा. बट उसके बाद उसका स्पेशलाइजेशन होगा. तो सर ये स्पेशलाइजेशन होता कहां पे है? सो he'll go for इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. अगर आप 12th के बाद एनडीए देते हो तो आप 3 साल का ट्रेनिंग लोगे एनडीए में. उसके बाद अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है, यू विल गो टू द IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून. अगर आपको नेवी जाना है तो आप 3 साल का ट्रेनिंग एनडीए में ही लोगे, बट यू विल गो टू द इंडियन नेवल एकेडमी एजमला, इट्स इन केरला, राइट. अगर आपको एयरफोर्स जाना है, देन यू विल टेक 3 years ट्रेनिंग इन एनडीए फॉर इंडियन एयरफोर्स. देन आपका स्पेशलाइज जो ट्रेनिंग होगा वो होगा इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद. ठीक है, राइट. सो दिस विल बी द थिंग. आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू विल बी एन ऑफिसर. ठीक है. बट सर ये तो हो गया सिंपल सा, मतलब ये तो पता चल गया कि कहां पे ट्रेनिंग होता है, कितना टाइम का ट्रेनिंग होता है. बट एक्चुअल में ये एग्जाम देना कैसे है? तो बहुत सिंपल सी बात है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनडीए एग्जाम, लेकिन यही पैरामीटर सबके लिए होता है. लेट इट बी CDS एग्जाम, लेट इट बी एनडीए एग्जाम, ये सारे एग्जाम के लिए यही होता है. लेट इट बी AFCAT एग्जाम एज वेल, राइट. तो सबको ये सेम है, डोंट वरी. सो आप कोई भी एस्पिरेंट हो, यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ अगेन विद दिस स्पेसिफिक टाइम ऑफ एग्जाम. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं. अगर 12th के बाद आपको एनडीए जाना है, राइट, तो आपको यूपीएससी देना पड़ता है आफ्टर 12th, which can be given by male candidates only. But after graduation there are exam called CDS and AFCAT. ठीक है. CDS is combined defense services and AFCAT stands for air force के लिए जो रिटर्न एग्जाम होता है, that. So ये दोनों भी एग्जाम जो होते हैं, जो रिटर्न एग्जाम होते हैं, उनका जो थोड़ा व्हाट कैन वी से एग्जाम का तरीका होता है या फिर पैटर्न होता है, और एनडीए का पैटर्न जो होता है somewhat it is similar. Yes, syllabus different, है ना. मैं बोलो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा बहुत सिमिलर है, syllabus is totally different. We'll discuss it in the later slides. So basically, hello. Yes, sir. You are audible. Yes, perfect. Right. So stages for NDA exam. You can relate CDS as well. You can relate AFCAT as well. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम पड़ेगा. ये सारे जो एंट्रीज है ये डायरेक्ट एंट्रीज है. ठीक है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, यू लव इट. ठीक है. इंडियन आर्मी मतलब सिर्फ बंदूकें लेके गोलियां चलाना होता है क्या? नो, वी डू दैट इन PUBG, राइट, जो कि अभी बैन हो चुका है. वी डोंट डू दैट. ठीक है. जस्ट इमेजिन सपोज पाकिस्तान तो है ही, राइट, एक यूजलेस कंट्री हमारे है लेफ्ट हैंड साइड में, खुद तो अचीव कुछ कर नहीं पाई, बट यस दे आर ऑलवेज पोकिंग अस, राइट. सो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहां पे अटैक कर दिया है. सो इज इट लाइक वी जस्ट से जय हिंद, हम जस्ट जय हिंद बोल के बंदूक लेके जाते हैं क्या? नो, वी हैव टू प्लान इट फर्स्ट. हमें पहले वो प्लान करना पड़ता है ना. जितना भी पूरा सिनेरियो पूरा हमें पूरे प्लान करना पड़ता है. उसके लिए थिंक टैंक होना चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल जहां पे हम जाने वाले हैं वहां से सिग्नल एस्टेब्लिशमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं हमारा टीम पाकिस्तान के साथ लड़ने चला गया और हम उससे कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर हियर, राइट, जहां पे दूर दूर तक मोबाइल को सिग्नल नहीं होता है. तो अगर सिग्नल एस्टेब्लिश करना है वहां पे तो हमें इंजीनियर्स लगेंगे. फॉर दैट वी हैव अ सिग्नल कोर, राइट. अब अगर वॉर 15-20 दिन चला, राइट, उपवास तो रख नहीं सकते वो, है ना, कि 15-20 दिन भारत माता के लिए उपवास रखेंगे. नहीं, फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो उनको लगेगा फूड, लगेगा नहीं लगेगा, तो उसके लिए सप्लाई कोर होता है. सो लड़ना मतलब सिर्फ बंदूक लेके जाना नहीं होता है. वी हैव टू एस्टैब्लिश ब्रिज, सिविल इंजीनियर्स लगते हैं. वी हैव टू कोड, मतलब जितने भी प्रॉपर हमें कोडिंग करना पड़ता है, हमें सिग्नल एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है. सारी चीजें करने के लिए हमें अलग अलग कोर लगते हैं. तो हमें उसके लिए इंजीनियर भी लगते हैं, राइट, हमें उसके लिए डॉक्टर्स भी लगते हैं, राइट, हमें उसके लिए कॉम्बैट फाइटर्स, जिसे हम पैरा कमांडो बोलते हैं, कॉम्बैट फाइटर्स मतलब जो एक्चुअल में फाइटिंग लेते हैं, इन्फेंट्री वी कैन कॉल इट, वो भी हमें लगते हैं, राइट. सो अलग अलग एंट्रीज होती है. तो यूजुअली फॉर इन्फेंट्री देयर आर डायरेक्ट एंट्री, ठीक है. सो बेसिकली होता क्या है, कुछ एंट्रीज होती है एनडीएस, सीडीएस, एफकैट, इनको तुम्हें रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, कंडक्टेड बाय यूपीएससी. कुछ एंट्रीज होती है टीएस, यूएस, टीजीसी, एसएससी. तो ये क्या होती है, अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आप स्ट्रेट अवे एसएसबी को जा सकते हो, ठीक है. बट विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर द एंट्रीज विच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी. क्योंकि मैंने बोला था चीफ ऑफ इंडियन नेवी, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, देख लो, ऑल आर फ्रॉम एनडीए, राइट. सो जहां पे यूपीएससी एग्जाम आता है क्वालिटी कैडेट्स आते हैं, राइट. ओके, सो बेसिकली होता क्या है, पहले सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है, एनडीए होने दो, सीडीएस होने दो, एफकैट होने दो. सर रिटर्न एग्जाम के बाद क्या होगा, अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर गए, राइट, देन देयर विल बी यूपीएससी रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे. तो सर मैं सिलेक्ट हो गया क्या, ना, देयर विल बी इंटरव्यू फॉर एसएसबी, है ना. तो सर इंटरव्यू कितना 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है 5 days का, राइट. इवन इफ यू गो फॉर आईएएस आपका इंटरव्यू होता है 5 or 10 minutes या फिर मैक्स टू मैक्स 1 hour, राइट. बट इफ यू वांट टू गो फॉर इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपका इंटरव्यू 5 दिन चलेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. सो उसमें फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग होता है. फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख लोगों में से 8000 लोग रिटर्न क्लियर कर गए, उसमें से 4000 लोग फर्स्ट डे ही बाहर निकलेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद देयर इज अ कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस इज द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, बिकॉज आपका सब कुछ हो चुका होता है एंड दैट इज द रिजल्ट. आई स्टिल रिमेंबर कॉन्फ्रेंस, आई लव इट, राइट. सो कॉन्फ्रेंस में यूजुअली काफी अफसर्स आगे बैठे होते हैं, दे गिव यू द रिजल्ट. इफ यू क्लियर कॉन्फ्रेंस यू गेट रिकमेंडेड, है ना, आप रिकमेंड होते हो. उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं. अगर मेडिकल आते हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है. फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, काफी ऐसे रैंक्स आते हैं. आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो महाराष्ट्र में से ऑल इंडिया, मतलब महाराष्ट्र में से रैंक 1 है बट इंडिया में से रैंक 36 है, अनुराग शिंदोड़कर. मैं स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर रहा हूं, द रीजन इज हिज फादर इज द सिक्योरिटी गार्ड. यूजुअली जब आप गाड़ी लेके जाते हो ना सोसाइटीज पे, जो गेट खुलते हैं, when he came to me he was underconfident. he is like कि सर कहा मैं यहाँ पे आया, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, I'm not able to speak English properly, है ना. he was not confident at all. he was like कि सर मैंने घर में कभी देखा नहीं है, वो लोग स्पून से खा रहे सर, है ना, राइट. वो लोग स्पून से खा रहे, मुझे पता नहीं स्पून से कैसे खाते. he had that, त्याला न्यूनगंड म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, राइट, वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था उसमें, ठीक है. बट आई रियलाइज वन सिंपल थिंग, he had that fire. वो फायर जो होता है ना वो उसमें था. Not only he cleared written exam, not only he cleared UPSC result, not only he cleared SSB screening, not only he cleared conference, not only he cleared medical, he stood first from Maharashtra, all India rank 36, and that is not a joke, guys, right? अगर एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का अगर इतना आगे जा सकता है, why can't you? उनके मॉम डैड को पता भी नहीं था what kind of position he will get. इसके आगे कौन सा पोजीशन मिलेगा पता भी नहीं था. That is the beauty of defense forces, है ना. If you give your 100%, you can always be there. So सर ये एनडीए एग्जाम होने के बाद उसका पैटर्न क्या होता है? सो बेसिकली ये एनडीए एग्जाम का पैटर्न है. इसमें एक मैथमेटिक्स होता है और सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी. एक होता है मैथमेटिक्स जो कि 300 मार्क के लिए होता है, एक होता है जनरल एबिलिटी. जनरल एबिलिटी में 200 मार्क का इंग्लिश होता है एंड बाकी जो 400 मार्क है उसमें जनरल एबिलिटी मतलब सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं. गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग हियर, राइट. आई हैव टू फिनिश इन नेक्स्ट 5 minutes, देन आई कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड. एक बात जान लो, लेट इट बी एनडीए, लेट इट बी सीडीएस, लेट इट बी एफकैट, पैटर्न यही होने वाला है. थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. एनडीए के पेपर में जो मैथमेटिक्स होता है ना वो होता है 11th 12th का मैथमेटिक्स, राइट.
CDS में जो मैथमेटिक्स होता है दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स. सो बेसिकली द मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट देन द मैथमेटिक्स ऑफ CDS. CDS में जो मैथमेटिक्स होता है वो 10th तक का होता है, बट लेवल इज लिटिल अप. बट एनडीए का जो मैथमेटिक्स होता है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मैथमेटिक्स आस्क्ड इन ऑल डिफेंस एग्जाम्स. अंडरस्टूड? इसीलिए सबसे डिफिकल्ट एग्जाम एनडीए कहलाता है, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑफिसर एनडीए से निकलते हैं. राइट? इफ यू रियली वांट टू गो फॉर इट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. ठीक है? सो एनडीए में एक पेपर, पहला पेपर मैथमेटिक्स का, सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी. यही अगर सीडीएस की बात करें तो यही होता है. पेपर 1 मैथमेटिक्स होता है, लेकिन वहां पे 3 पेपर होते हैं. यहाँ पे 2 पेपर है, वहां पे 3 पेपर होते हैं. पहला मैथमेटिक्स, सेकंड इंग्लिश, थर्ड इज जनरल अवेयरनेस. ओके, अंडरस्टूड? सो दैट इज इजी, राइट? सो सर आपने जो बोला कि यहाँ पे एनडीए रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी होता है. सर एसएसबी, ये एसएसबी क्या होता है? सो बेसिकली एनडीए या फिर डिफेंस फोर्सेस ये कुछ क्वालिटीज देखते हैं. आप में इन्हें कुछ क्वालिटीज देखने होते हैं, राइट? इट इज नॉट लाइक कि बाप रे क्या हाइट है, आ जाओ, वाओ, है ना, यू लुक हैंडसम, आ जाओ, वाओ यू आर रिच, आ जाओ. इट इज नेवर लाइक दैट, है ना. यू हैव 95% इन 10 बोर्ड, आ जाओ. It is never like that. I have seen students scoring 98% in 12th CBSE, failing this exam, and I have seen students scoring 62% in 12th CBSE board getting recommended. His name is Kiran Patil. Abhi wo join karne wala hai. He'll be joining soon. है ना? He's got some 62 or 67%. There is one more student, which is Ajit Patil, who's got 98%, but he couldn't clear it. Yes, he had capabilities, but the orientation towards this exam is very different. है ना? उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं चाहिए. Yes, they do respect Albert Einstein, but they don't want Albert Einstein. They want people जो उनमें set हो. Right? I would like to tell you this example. Once I met Major General Ajay Saxena sir. I discussed few things with him. This is a huge rank, by the way. After discussing, I realized he's like, Tejas, we don't want perfect students. We don't want perfect students. We don't want people with good personality. We don't want people with good English. We want people जिनकी personality हम अच्छे से कर पाए. Are you getting my point? उन्होंने एक simple example दिया था. मड़के जो होते हैं, मड़के, we call it मड़के, right? I don't know what do you call it in Hindi, ma'am? Right? मडक्यांना हिंदी मध्ये काय म्हणतो आपण? घड़ा. It's घड़ा. Right? It's घड़ा, right? So घड़ा अगर बनाना है वो मिट्टी से बनता है ना? So he's like कि we don't want घड़ा. हमें एक अच्छा चांगला मडका नको आहे आम्हाला. We want very good quality soil. छान क्वालिटीची माती पाहिजे आम्हाला. ठीक आहे? ज्यांच्यापासून आम्ही एकदम चांगली क्वालिटीचे घडे बनवू शकू, है ना? चांगल्या क्वालिटीचे मडके बनवू शकू. So that is what all they want. They are searching for a soil, not a घड़ा. एकदम बेसिक मूल जे खेळातनं वगैरे पण आले ते पण रिकमेंड होतात. सर हे जे लोक आहेत ते क्वालिटीज कोणत्या बघतात? आणि हे सगळ्यात महत्त्वाची स्लाइड आहे आणि ही लास्ट स्लाइड आहे. सो देयर आर 15 क्वालिटीज जिन्हें हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs, वी कॉल देम OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. देयर आर 15 OLQs, है ना? 15 क्वालिटीज होते हैं. अगर वो आप में होंगे यू गेट सिलेक्टेड. सो सर ये क्वालिटी कौन से होते हैं? इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राइट? दे डोंट वांट साइंटिस्ट, दे वांट पीपल हु कैन थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. उन्हें रिसर्च नहीं करना है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. बिकॉज जब आप ऑन फील्ड हो गए, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, राइट? अगर वहां से मिसाइल आ रहा है, कहीं से मिसाइल आ रहा है, यू वोंट कीप ऑन कैलकुलेटिंग. आप कैलकुलेट नहीं करोगे, ओ माय गॉड मिसाइल का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, राइट? इट इज कमिंग विद दिस स्पीड, वो यहाँ पे लैंड होगा. इतना कैलकुलेशन करते तक मिसाइल फूट जाएगा वहां पे, है ना? स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस होना चाहिए जो कि इफेक्टिव होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी. सेकंड, रीजनिंग एबिलिटी. सर रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजन देने के हम तो बहुत अच्छे से देते हैं, है ना? हमारे टीचर ने पूछा लेक्चर को क्यों नहीं थे? सर मेरा सर दुख रहा था, है ना? सर ने पूछा मार्क्स क्यों कम आए? सर पेन खत्म हो गया था. रीजन तो हम काफी अच्छे से देते हैं. दैट इज नॉट व्हाट दिस रीजनिंग एबिलिटी मींस. दे बिलीव दैट एवरीथिंग हैज अ रीजन. कुछ भी होता है तो एवरीथिंग हैज अ रीजन. यू शुड बी एबल टू फाइंड द रीजन. दैट इज द कंटेंट बिहाइंड दिस रीजनिंग एबिलिटी. पावर ऑफ एक्सप्रेशन. सर व्हाट डज इट मीन बाय पावर ऑफ एक्सप्रेशन? एक छोटा एग्जांपल देता हूं. जब मैं पुणे आया था, I was very क्या बोलते हैं उसको, इन्फेरियर, न्यूनगंड होता माझ्यामध्ये. आई एम लाइक की मैं बोलू की नाही, राइट? मैं क्या बोलू, माय नेम इज तेजस बोलू की माझं नाव तेजस सांगू, है ना? मैं टीचर के साथ क्या बात करूं, वो मुझे जज करेंगे क्या, राइट? आई वाज लाइक दैट. नाउ आई कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 200 ऑफिसर्स एंड आई कैन गिव देम लेक्चर्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, राइट? माय इंग्लिश इज माय मराठी एंड हिंदी आर कंपैरेटिवली वीक. सो प्लीज अगर कुछ वर्ड्स नहीं आते तो बेयर विद इट.
but now I can stand in front of 200 officers and I can give them lectures, है ना? That is what we call power of expression. जो express कर रहे हो लोगों तक पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है? For best example, हिटलर, एक छोटे हाइट का इंसान, पूरा दुनिया हिला दिया उसने, राइट? कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थे क्या उनमें? नो. शक्तिमान थे क्या वो? नो. पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस करते थे लोग, पीपल यूज्ड टू कन्विंस, गेट कन्विंस्ड. पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, यस सर मैं कर सकता हूं, ठीक है? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब एक ही चीज को करना है, उसके पीछे लग जाना. डिटर्मिनेशन कैन बी देयर. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी तो आनी चाहिए, है ना? इट स्टार्ट्स विथ होम, है ना? ऑर्गेनाइज करना है तो आपको कुछ बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करने हैं कि नरेंद्र मोदी जी की रैली ऑर्गेनाइज कर दी, है ना? राहुल गांधी जी की रैली ऑर्गेनाइज कर दी, वो नहीं करना है. छोटी छोटी चीजों में देखते हो आप ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो. तो आपको पूछते हैं आप घर पे कैसे बिहेव करते हो, मम्मी को क्या हेल्प करते हो, पापा को क्या हेल्प करते हो. सो ये छोटी छोटी पॉइंट्स में से वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी देखते हैं, राइट? इनिशिएटिव, हर चीज में इनिशिएटिव लेने की कोशिश क्या करो, राइट? जैसे अभिनव करियर्स को अपने, they took a very wonderful initiative to guide the people and it's a really good initiative because एक बात मुझे रियलाइज हुई, टैलेंट भर भर के है ना? यशोतेज एकेडमी में सिर्फ महाराष्ट्र से लोग नहीं आते, देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं. एक चीज मुझे रियलाइज हुई, एनडीए जो है वो महाराष्ट्र में है, वो पुणे में है, पुणे के लोग एनडीए में नहीं है, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है? राइट? द काइंड ऑफ लाइफ यू हैव विल गेट ओवर देयर, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है? It is very essential to have the initiative. Because of this initiative, I am able to reach out to you guys, है ना? इसके बाद शायद हम साथ में ही डटे रहेंगे. Then there's a courage. Courage मतलब हिम्मत, हिम्मत तो होनी चाहिए भाई, राइट? हिम्मत तो होनी चाहिए. सर मैं लाइट बंद करने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, है ना? तो मुझ में करेज है तो डेवलप करो, ठीक है? You'll have to develop cooperation. You should be able to cooperate, है ना? क्योंकि जंगल में जब जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्फेंट्री में ही जाओगे, है ना? थिंक टैंक भी होगे, सप्लाई कोर में भी होगे, सिग्नल कोर में भी होगे, कहीं पे भी जब जाओगे तब कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स होंगे, है ना? सिग्नल कोर वाले इन्फेंट्री को कुछ बताएंगे, इन्फेंट्री कुछ अलग चीजों को कुछ बताएगी. सो बेसिकली यू शुड बी एबल टू कोऑपरेट विद ऑल ऑफ देम एंड इट हैज टू बी अ हेल्दी कोऑपरेशन, ठीक है? सो कोऑपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे 90% यूथ इंडिया का लैग हो रहा है. टैलेंट नहीं है क्या सर में? सर यूथ, इंडियन यूथ में टैलेंट नहीं है? ह्यूज टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट है. रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, है ना? अगर कोई भाषण देना चालू कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, राइट? तो लोग बोलते हैं यार नहीं, बोर हो रहा है, लेक्चर दे रहे सर, ठीक है? सो दैट शुड नॉट बी देयर. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टैमिना हैज टू बी देयर, एज यू हैव टू बी फिजिकली फिट, स्टैमिना हैज टू बी देयर. ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, इफ यू आर इन अ ग्रुप, आप ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो चीज. लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब कुछ भी एंजॉय कर लो, लाइवलीनेस मतलब कुछ भी एंजॉय करना, राइट? यहाँ पे होता है काफी बार ट्रेनिंग में, यशोतेज एकेडमी में ट्रेनिंग में लोगों को सुबह से बहुत परेशान किया जाता है, सीनियर्स जूनियर्स को काफी परेशान करते हैं काफी बार, विच इज इसेंशियल. मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं. इवन आफ्टर इवनिंग आई कैन सी काफी लोग मेस में एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, राइट? बहुत एंजॉय कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल लाइवलीनेस. कोई भी शुड बी एबल टू एंजॉय. आप रो रहे हो हर चीज के बारे में, मम्मी ने वॉश नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, नहीं, यू आर नॉट परफेक्ट सूट फॉर दिस. सोशली अडेप्टेबल, है ना? सोसाइटी को पहचानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और तुम जब सोसाइटी में रहते हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, है ना? आर यू एबल टू अडॉप्ट विथ इट और नॉट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट, स्पीड ऑफ डिसीजन. डिसीजन कितना स्पीड से ले रहे हो? एज आई टोल्ड यू, अगर कोई आ रहा है, मिसाइल आ रहा है, यू वोंट कीप ऑन कैलकुलेटिंग, राइट? स्पीड ऑफ डिसीजन, है ना? तब शायद टाइम भी नहीं होगा, है ना? सो आपको स्पीड से डिसीजन लेने होते हैं. सो ये जो क्वालिटीज है ना, 15 क्वालिटीज, ये आपको चाहिए अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में जाना है तो. आई नो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट माय सेमिनार. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू कैन डेफिनेटली पुट इन द चैट विंडो, है ना? वी कैन हैव अ डिस्कशन देन. मैम, Thank you, Tejas sir. You Right. have given a very important information today, but still many questions had came, so we will take one by one. But your Yes, information was super basic, at least basic details we got from your PPT. So we will go ahead and we will take all the questions one by one. So all three questions I got from girl student. I will take first. Shreya, Arushi, Namjoshi, and Isha, they are asking about their all the opportunities. So let me read the question. After 12, there is any way to join defense for girls? For girls, what you preferred? How study we have to do?
Also tell us the opportunity for girls in defense, its criteria and all information. What are the websites, exams, and which one is better for girls, Army, Navy, or Air Force? And the Isha is asking, please discuss about career opportunities in defense services for girls after graduation. Okay, then we'll do one thing. We'll distribute this question, right? The first thing Yes, is key career opportunities for girls. The second, which is better for girls, right? And third, study कैसे करना है. So basically, as I said earlier as well, अभी girls के लिए after 12th कुछ opportunity नहीं है, ठीक है? Even I personally feel, मेरी एक दोस्त है, she is a lieutenant now, JAG entry के थ्रू, मतलब that is not, that's a different entry actually. अगर आप what do you call it? JAG entry is a different entry. मतलब advocate अगर हो आप, you can opt for that entry. So she's a girl, but I believe she's better than hundreds of other boys. So I personally feel that 12th के बाद लड़कियों को आना ही चाहिए. In let it be India, let it be technical entries. But as of now, there is no such entry which can make you officer after the 12th. Okay? So after graduation, there are few entries. So I'll explain it to you. So basically, there is a SSC Tech entry. अगर आप इंजीनियर हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस एंट्री फॉर वुमन, एसएससी टेक एंट्री फॉर वुमन. सो एज आई सेड, उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर्स भी चाहिए, उन्हें सिविल इंजीनियर्स भी चाहिए, उन्हें ईएनटीसी इंजीनियर्स भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स भी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी चाहिए. सिंपल सी बात है ना, टैंक्स है, टैंक्स में मशीनरी है, मैकेनिकल इंजीनियर. सिग्नल एस्टैब्लिश करना है, सिग्नल एस्टैब्लिश करने के लिए विच इंजीनियर, राइट? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, राइट? या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियर, है ना? कोडिंग करना है, ब्रिज बनाना है ना? आपको पता होगा कॉमनवेल्थ, आप में से आपके अगर पेरेंट्स हो गए तो उनको डेफिनेटली पता होगा, कॉमनवेल्थ गेम के वक्त एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था, है ना? एंड इट वाज समथिंग कि हमें बहुत कम दिनों में वो ब्रिज बनाना था. आर्मी टुक द जॉब, है ना? नो, कोई बिल्डर नहीं कर पाया, आर्मी ने कर दिया. सो वी नीड सिविल इंजीनियर्स, राइट? सो एसएससी टेक ऐसी एक एंट्री है वुमेन के लिए. अगर आप इंजीनियर हो तो उसके बाद उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है? आप इंजीनियर नहीं हो, डोंट वरी, द बेस्ट एंट्री इज येट टू कम. देयर इज एन एंट्री कॉल्ड सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो कि लड़कियां दे सकती है. इट इज लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू अदर एंट्रीज, बट ये एंट्री आप दे सकते हो. आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन ओटीए, है ना? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, वहां से आप अफसर बन सकते हो. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्मी हियर. फॉर एयरफोर्स देयर इज अ एफकैट एंट्री, ठीक है? फॉर एयरफोर्स देयर इज अ एफकैट एंट्री. ऐसे कुछ एंट्रीज होते हैं. देन कैन यू जॉइन हॉस्पिटल्स? ओके, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन लेटर. सो बेसिकली ये तो हो गया कौन सी एंट्रीज हम ज्वाइन कर सकते हैं. सेकंड थिंग, सर पढ़ाई कैसे करना है? तो एज आई सेड, सीडीएस के लिए जो पढ़ाई करना है सिंपल होता है. उसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जनरल अवेयरनेस, यू हैव टू बी जनरली अवेयर, है ना? आपका इंग्लिश अगर थोड़ा बहुत अच्छा है और आप जनरली अवेयर हो, मतलब आपको पता है कि इंडिया कैसे चल रहा है ना? पॉलिटिक्स कैसे चलती है इंडिया की, है ना? करंट अफेयर्स फिलहाल क्या चल रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज क्या है, अगर ओवरऑल भी पता है आपको तो यू क्लियर दिस एग्जाम. कुछ बड़ी बात नहीं है. नाउ क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज बेटर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? सो गाइस, दैट इज योर ओन प्रायोरिटी. फ्यू पीपल लाइक ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म, फ्यू पीपल लाइक यूनिफॉर्म इन बीइंग इन व्हाइट, है ना? और काफी लोगों को स्काई ब्लू पसंद है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी. इफ यू वांट टू बी अ फाइटर पायलट, यू कैन डेफिनेटली बी अ फाइटर पायलट, राइट? आप फाइटर पायलट भी बन सकते हो. यू कैन जॉइन इंडियन एयरफोर्स. अगर आपको शिप्स बहुत ज्यादा पसंद है, यू कैन गो फॉर नेवी. दैट इज योर ओन पर्सनल चॉइस. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि सर मैं कहां ज्यादा खुश हूं, है ना? सर मैं कहां पे ज्यादा खुश हूं. बट आई एम रियली हैप्पी टू से कि आजकल बहुत ज्यादा लड़कियां दे आर परस्यूइंग दिस एज अ करियर ऑप्शन. Guys, I'm Indian. I'm really proud of my nation. But yes, somewhere down the line, अभी भी सोसाइटी में जो लड़कियां हैं या फिर जो फीमेल्स है, उनका पोजीशन, है ना, कहीं ना कहीं तो भी दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग हियर एंड देयर. अगर आप कोई लेडी ऑफिसर को जाके मिलोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मेरा एक स्टूडेंट था, विक्रमादित्य सिंह, है ना? उनकी मॉम थी लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन व्यास, है ना? एनडीए के अंदर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां के जो कमांडिंग ऑफिसर थी वो. आई वेंट टू हिज होम, आई स्टार्टेड टीचिंग हिम, राइट? एंड शी केम इन. 5 मिनट में कुछ बोल नहीं पाया, बिकॉज द कॉन्फिडेंस ऑन अ फेस, द लेवल ऑफ नॉलेज शी यूज्ड टू हैव. सो अगर एक्चुअल में हमारी लड़कियों को, हमें अगर व्हाट डू वी कॉल इट, अगर स्ट्रेंथ देनी है, दिस कैन बी अ बेटर करियर ऑप्शन. जितनी भी गर्ल्स हैं, I'll tell them you should at least try once this exam, because आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने को मिलेगा और you realize how much potential you have within you. ठीक है? Our society, हमारे सोसाइटी ने शायद आपके साथ जस्टिस नहीं किया होगा, but this is the platform where you can self introspect yourself. You can realize, oh my God, I have these amount of qualities. OTA चेन्नई में
बॉयज का ट्रेनिंग और गर्ल्स का ट्रेनिंग साथ में होता है आफ्टर ग्रेजुएशन. आई हैव सीन मेनी गर्ल्स killing many boys, right, in many areas, right? So yes, I'm really happy, Shreya and all Arushi, I guess. Yes, Right? sir. Yes, you want to pursue this as a career, but you should go for it. Okay? We can move towards the next question, ma'am. Yes. If girls wants to join CDS or AFCAT, which graduation is preferred? Okay. So basically, if you want to go for CDS and AFCAT, then there is no restriction on graduation because these are not technical entries, right? ये ऐसी एंट्री है, सीडीएस और एफकैट, ये दोनों ऐसी एंट्रीज हैं जहां पे आपको पढ़ना पड़ता है रिटर्न के लिए. ठीक है, डायरेक्ट एंट्री तो आएगा नहीं, डायरेक्ट एसएसबी का कॉल तो आएगा नहीं. तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो इसके लिए ग्रेजुएशन इट इज नॉट, मतलब इट इज नॉट इसेंशियल कि आप यही ग्रेजुएशन करो और सीडीएस और एफकैट दो. ठीक है, बट अगर आपको कोई टेक्निकल एंट्री में जाना है, टेक्निकल एंट्री के थ्रू अगर जाना है, तो आपको इंजीनियरिंग इज अ प्रिफरेबल ग्रेजुएशन. अदरवाइज यू कैन ऑप्ट एनी ग्रेजुएशन, राइट? Yes, Okay. ma'am. Thank you, sir. Vedant Gosavi, the question is asked by him. What are all the ways to join NDA after doing PCM or NCC? Right. I think there's a little confusion. ठीक है, एनडीए को ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, 8 लाख लोगों से कंपीट करो. ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम दो, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करो, 8 लाख में से 8000 में सिलेक्ट हो जाओ, 8000 में से 400 में सिलेक्ट हो जाओ. ठीक है, देयर इज नो एनी अदर वे कि सर मेरे चाचा प्रेसिडेंट है, सर मेरे जो दूसरे चाचा है वो प्राइम मिनिस्टर है, हो जाएगा क्या एनडीए में? नो, देयर इज नो चांस, राइट? एक ही वे है, देयर इज नो एनसीसी, नथिंग 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 नथिंग. फॉर एनडीए, गिव द रिटन एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूपीएससी क्लियर करो, एसएसबी क्लियर करो और एनडीए ज्वाइन करो. फॉर एनसीसी देयर आर डिफरेंट एंट्रीज, राइट? एनसीसी इज अ डिफरेंट थिंग. एनडीए के लिए आपको रिटन एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो कि 12th सिलेबस पे ही बेस्ड होगा, एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम 12th सिलेबस जनरल अवेयरनेस भी, राइट? Thank you, sir. The next question from Agargi Kare. Sir, can you please elaborate about AFCAT exam? Also, please guide how we can join NCC after 12th. Right. So there are two questions. First question is, how should we prepare for AFCAT exam? Believe me, AFCAT exam is comparatively very easy compared to CDS. It's very easy. So you should do 2 or 3 things. है ना? There's book in the market for AFCAT. You can pick up any book, right? You can pick up Arihant, you can pick up any other book. वो book pick up करो. Just go through the syllabus, right? Learn the syllabus. ठीक है? Prepare hard for it. अब AFCAT में ऐसे अलग से कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती, because English is basic. इंग्लिश में ऐसे कुछ पूछेंगे नहीं कि चेंज द वॉइस करो, ये करो, वो करो. इट्स अ बेसिक इंग्लिश. डे टू डे लाइफ में आप कहाँ पे यूज करोगे, वॉज कहाँ पे यूज करोगे, इस कहाँ पे यूज करोगे. ठीक है, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी होता है जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडर हो, है ना, सो अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो रोज न्यूज़पेपर में से, यू विल गेट टू नो, ओ माय गॉड, सच अ वंडरफुल वोकैबुलरी हियर. उनके बाहर कुछ नहीं आता है. ठीक है, सो AFCAT के लिए पढ़ाई अगर करना है तो सबसे पहले तो बुक्स निकालो. सेकंड थिंग, वी हैव द बेस्ट टीचर हियर व्हिच इज इंटरनेट, है ना, सबसे बेस्ट. जब मैं 12th में था तब इतना इंटरनेट नहीं था, राइट? अभी है. सो सबसे पहले प्रिपेयर फॉर AFCAT. सेकंड थिंग, सारे AFCAT पेपर डाउनलोड कर लो, सारे AFCAT पेपर डाउनलोड कर लो. हम एकेडमी में वही कराते हैं, बट इट इज नॉट इसेंशियल कि आपको एकेडमी ज्वाइन ही करना है. ठीक है, सो सारे पेपर डाउनलोड कर लो. पेपर एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो. अगर आप पूरा पढ़ के एक बार 3 बार पेपर सॉल्व कर लोगे लास्ट 5 साल के ही बस, है ना, यू विल डेफिनेटली मेक इट. एंड द सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट एनसीसी, राइट मैम? Yes, sir. राइट. सो सेकंड, हाउ टू ज्वाइन एनसीसी. सो बेसिकली ग्रेजुएशन में काफी ऐसे कॉलेज होते हैं जो एनसीसी देते हैं, काफी ऐसे कॉलेज होते हैं जो एनसीसी नहीं देते. तो आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा कॉलेज एनसीसी प्रोवाइड करता है, कौन सा कॉलेज एनसीसी प्रोवाइड नहीं करता है. अगर आप अभी ऐसे कॉलेज में हो जो एनसीसी प्रोवाइड नहीं करता है, इट्स टोटली ओके. पुणे में एनसीसी का हेड ऑफिस है, यू कैन जस्ट गो देयर, यू कैन एनरोल योरसेल्फ ओवर देयर एंड दे विल गिव यू नॉलेज अकॉर्डिंगली, राइट? अगर आपके कॉलेज में एनसीसी है, बेस्ट गो टू सीनियर्स, उनसे बेटर कौन हो सकता है? ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में सीनियर्स आर एवरीथिंग, राइट? दे विल गाइड यू. मतलब आपको पनिशमेंट भी काफी मिलेगा, लेकिन यस, नॉलेज भी काफी मिलेगा. सो एनसीसी के लिए यू हैव टू चूज द कॉलेज अकॉर्डिंगली. ओके, यस. Thank you, sir. Very good information you have shared. Now, next question from Aditi. What are the opportunities in defense through commerce stream? And what are the opportunities for NCC student? Okay. Again, the same question, but the question is little different. Last time NCC कैसे join करूँ ये था, अभी opportunities for NCC guides. Exactly. So the second thing, so we'll distribute this question now. Commerce student के लिए, as I said,
कॉमर्स के हो मतलब आपके लिए सिर्फ टेक्निकल एंट्रीज नहीं रहेगी जो इंजीनियर की होती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उनको इंजीनियर चाहिए तो दे कैन नॉट हैव कॉमर्स, बट अगेन यू कैन गो फॉर सीडीएस एंड एफकैट, यू कैन गो फॉर सीडीएस एंड यू कैन गो फॉर एफकैट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब ये गर्ल्स के बारे में चल रहा है, राइट। गाइस के लिए और भी ऑप्शंस है, टेरिटोरियल आर्मी इज आल्सो देयर, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन हो स्टिल इफ यू वांट टू सर्व इन द आर्मी, राइट, यू कैन गो फॉर टेरिटोरियल आर्मी एज वेल, पीए सर्च कर सकते हो आप। बट लड़कियों के लिए सीडीएस एंड एफकैट, इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स यू कैन गिव सीडीएस, यू कैन गिव एफकैट, राइट। एंड यस अबाउट एनसीसी कि सर एनसीसी की बात क्या होता है, तो एनसीसी स्पेशल एंट्रीज भी होती है बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए और मिनिमम ग्रेड हैज टू बी बी। अगर आपके पास अच्छा ग्रेड है और आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप स्ट्रेट अवे आपको एसएसबी का कॉल आएगा, आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट एज आई सेड टॉपर्स कहां से आते हैं, टॉप ऑफिसर्स कहां से आते हैं, एनडीए, मतलब जहां पे रिटन एग्जाम होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, राइट। एनसीसी के थ्रू जाओगे, प्रॉब्लम ये कि एनसीसी सर्टिफिकेट हजारों लोगों के पास होगा और जगह होंगी 4 5 6 मैक्स टू मैक्स, राइट। तो वैकेंसीज काफी कम है एनसीसी के लिए, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू सर्व इन डिफेंस फोर्सेस, इट्स रियली गुड दैट यू हैव अ एनसीसी सर्टिफिकेट, बट अलोंग विद दैट प्रिपेयर फॉर सीडीएस एग्जाम। अगर सीडीएस के थ्रू एसएसबी देने जाओगे तो आपका एक फायदा होगा कि आपने सीडीएस भी क्लियर किया है, दूसरा सर्टिफिकेट भी है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज अ क्लियर कॉम्बिनेशन, ओके, राइट। सो आफ्टर एनसीसी फॉर बॉयज एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है, फॉर गर्ल्स एनसीसी स्पेशल एंट्री होता है। सो सी सर्टिफिकेट अगर होगा तो आप दे सकते हो एसएसबी स्ट्रेट अवे, यस। Thank you, sir. The next question from Dipansh. I have spec, so will I be eligible for going in NDA? And second question by Omkar, can a person with color vision problem apply for NDA? Right. So these are the medical problems, medical constraints. So as far as specs are concerned, तो specs का नंबर क्या है वो भी मैटर करता है, ठीक है। अगर specs का नंबर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू वोंट बी अलाउड, राइट। specs का नंबर अगर कम है ना, फॉर एग्जांपल 0.25 या फिर 0.5 या फिर मैक्स 1 2 है ना, तो आर्मी आपको एनरोल कर लेगी। बट फॉर मतलब अगर फाइटर पायलट बनना है या फिर नेवी में जाना है तो दे वोंट अलाउ यू, राइट। सो बट यू कैन जॉइन आर्मी, राइट। इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। लेकिन लिमिट होती है, मतलब 3 नंबर के से अगर ज्यादा बड़ा होगा सो नहीं जा पाओगे, ठीक है। सो स्पेक्स बात करिए कलर विजन की, तो उसमें भी उसका सीरियसनेस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना है आपको, उसके हिसाब से ही होगा ये। एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन देयर कमांड हॉस्पिटल्स ओनली, राइट। Thank you, sir. The next question by Tanaya Gadkari. Is it possible to enter into defense after completing engineering from abroad, actually another country? Is it possible? Right. Actually, the thing here is what's her name again? Tanaya Gadkari. Right, Tanaya. So the thing here is you can become officer. You can definitely become officer if you are the citizen of India, right? If you are the citizen of India, you can fulfill all the criteria, ठीक है। So it doesn't really matter आप कहाँ से कर रहे हो। Yes, there might be a few technicalities, है ना, जो legalities है वो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, affidavits वगैरह। But apart from that, yes, you can join. If you are the मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो you can definitely join. Okay. The question by Dipali Mure. Sir, is JEE is compulsory for taking admission into the defense or NDA colleges, and criteria for admissions and fees? नहीं, let me explain it to you. First of all, as I said कि इंडिया में लड़कियां जा नहीं सकती, so वो क्वेश्चन तो यहाँ पे ही खत्म हो गया। The second thing, सर JEE लगती है क्या इंडिया के लिए? No, JEE is a different thing, NDA is a different thing. For technical entries, you may need JEE score, but for NDA का सब कुछ अलग है। NDA is like we are the boss, will conduct everything, will conduct our written, will conduct our SSBs, will conduct everything. Okay, right? So it is more like that. So अगर आपको NDA जाना है तो आपको अलग से एग्जाम ही देना पड़ेगा, बट वो NDA का जो एग्जाम होता है वो लड़कियों के लिए नहीं होता है। Is there any third question? इसमें कुछ criteria for admissions and fees. Right. So हाँ, let me tell you this. The best part about NDA is, जैसे मैंने बोला, अनुराग शिंदोड़कर, his father was him security guard, ठीक है। So इनको फीस वगैरह कुछ नहीं होता। It's more like कि 12th के बाद गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारे लड़के में टैलेंट है, मुझे दे दो, मैं इसको बना दूंगा। Government is like कि give him to me, will spend lakhs and crores on him and will make him one of the finest officer in the country. So you don't have to pay any fees. You don't have to pay. Yes, थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है स्टार्टिंग में एकदम, लेकिन डिपॉजिट का टेंशन मत लो, जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो। The best part about this is ट्रेनिंग लेने का भी आपको पैसा मिलता है। इट्स मोर लाइक कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो प्लस इंजीनियरिंग में पढ़ने के आपको पैसा मिल रहा है। यू डोंट हैव टू गिव एनी फीस, राइट? सो देयर इज नो फीस। Okay, great.
Now this question is asked by many parents, many students. When can I start preparing myself for NDA exams and strategies of toppers of NDA? परफेक्ट, ठीक है, इट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन. एज आई सेड, आपको एनडीए का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर ये एनडीए 12th के बाद ज्वाइन करना होता है, तो एग्जाम भी 12th के बाद देना है क्या? नो. एनडीए का एग्जाम है ना, ये साल में 2 बार होता है ना. नॉट ओनली एनडीए, सीडीएस भी और एफकैट भी. ये एग्जाम कितने बार होता है? साल में 2 बार. अंडरस्टूड, राइट? सो बेसिकली एक बार आप ये सितंबर में दे सकते हो, एक बार ये अप्रैल में दे सकते हो. सो इफ यू आर इन 12th, आप 12th कब दोगे? फरवरी या मार्च में. सो मार्च में अगर 12th दे रहे हो तो आप उसके बाद एक अटेम्प्ट दे सकते हो और उसके पहले भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो. अगर आपका 12th मार्च में है तो उसके पहले का सितंबर में आप एग्जाम दे दो, जैसे कि किरण पाटिल ने किया था, अनुराग शिंदोड़कर ने किया था. इन लोगों ने क्या किया, 12th के पहले इन्होंने एनडीए रिटर्न क्लियर कर दिया, उसके बाद उन्होंने 12th दिया और जैसे 12th का रिजल्ट आएगा तब तक इनका एसएसबी रिजल्ट आ चुका था. सो जैसे 12th का रिजल्ट आया उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया, राइट? सो इट इज मोर लाइक दैट. सो अगर 12th के पहले आपको एनडीए क्लियर करना है तो ऑब्वियसली आपको 10th के जस्ट बाद एनडीए प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा. अगर आप उसके पहले से भी चालू करते हो, इट्स वेल एंड गुड. जैसे एवरी ईयर पूरे इंडिया में से यहाँ पे 1200 एप्लीकेशन आते हैं, 1200 या 1300 एप्लीकेशन आते हैं यशोतेज एकेडमी में. वी सिलेक्ट 80 to 90 हार्डली. Sir, you're not audible actually. Tejas sir. We will wait for just like couple of seconds. Hello, Tejas sir. I think some might be technical issue came, so just wait for a like minute. One question I will take, the question from Anush Punjabi, I think parent. My son is more of a show-off type. He likes being fit, but he has artistic qualities. He writes and makes songs on his life. Is NDA meant for such children? So I will say it is not that case that he is artistic, so he can't go to the NDA. But NDA passion, as Tejas sir like gave the list of the things. So we need to just need to analyze those. If he really interested into NDA, going in the NDA, then definitely he can go for the NDA actually. Hello? Yes, sir. Tejas sir, yeah. I'm really sorry. Actually, thoda internet. No problem. It was a technical issue. No problem. Yes. Okay, so where were we? Sir, that NDA preparation from when we should start. So you told like you can start after 10th, immediately after 10th. Because NDA is not something कि जो 2 दिन पढ़ के 2 महीने पढ़ के होता है. नहीं, NDA में आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी पढ़ने पड़ते हैं. NDA के लिए वो भी लगते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है पर्सनल डेवलपमेंट. सो 10th के बाद ही आपने स्टार्ट करना चाहिए. Right? Okay. Yeah. So this is very important question now. The question been asked by Mr. Naik, how to manage both studies of class 12 boards and NDA preparation? Right. Very good question and very important question indeed, because काफी लोगों का ये होता है कि सर आपने बोल दिया कि 10वीं के बाद हम एनडीए स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारे लड़के का 11 12 का क्या होगा. सो अभी एक्चुअली मुझे टाइम कम था, दैट्स द रीजन आई वाज नॉट एबल टू डिस्कस द सिलेबस विथ यू. लेकिन अगर आपने एनडीए का सिलेबस देखा ना तो यू गेट द आइडिया अबाउट 2 थिंग्स. जो पहला पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, राइट? सो जस्ट इमेजिन यूपीएससी का मैथमेटिक्स पेपर कितना डिफिकल्ट होगा. सो अगर आप यूपीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, 12th इज नथिंग. फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड पृथ्वीराज पाटिल जिसने एनडीए क्लियर किया था. उसने 12th बोर्ड के पहले एक भी पेपर लिखा नहीं था, बिकॉज लास्ट टाइम इलेक्शन की वजह से एनडीए आगे चला गया, आगे शिफ्ट हुआ था. ही डिडंट इवन ट्राइड अ सिंगल पेपर, मतलब एक प्रैक्टिस पेपर भी उन्होंने सॉल्व नहीं किया था लास्ट टाइम, है ना. स्टिल ही वाज एबल टू सिक्योर 98 मार्क्स आउट ऑफ 100. तो सिंपल सी बात है, 12th बोर्ड इज कंपैरेटिवली एक्सट्रीमली इजी, राइट? अगर आप एनडीए करते हो तो 11 12 तो होता ही है. जैसे जितने भी लड़के यहाँ पे वाईटीए में भी आते हैं, हमारा पहला फोकस यही होता है कि उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और उस फाउंडेशन पे बाकी का जो उनका प्रोसेस है वो बिल्ड किया जाए. वाईटीए में ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए में नहीं हुए लेकिन जेडब्ल्यू में हो गए, ठीक है.
don't, but this is the institute for NDA only. If you are aspiring for JW, please don't join here, right? We are for NDA only. But जब NDA करते हो आप JW भी कर सकते हो. Just imagine. तो बोर्ड्स का तो सवाल नहीं उठता, ठीक है? Because आपको NDA करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है. बोर्ड में तो काफी सुपरफिशियल होता है, right? So don't worry about it. Yeah, thank you, sir. Now the question by Mayuri Nangare. What about armed force medical colleges? And the second question was also been asked, like how to enter in NDA for medical field. Right. So let me explain to you. NDA is National Defense Academy, right? जैसे मैंने बताया था कि डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग व्हाट कैन वी कॉल ग्रुप्स बोल दो, सिंपल भाषा में आपको समझने के लिए ग्रुप्स बोल दो. जैसे एक ग्रुप है जो लड़ने का काम करता है, अगर लड़ाई में कोई इंजर्ड हो गया, दूसरा ग्रुप है उनको ट्रीटमेंट देता है. तो ट्रीटमेंट सिर्फ वॉर फील्ड पे ही होता है क्या? नहीं. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे होती है, लड़के इतना हेवी ट्रेनिंग लेते हैं, कोई ना कोई इंजरी होता होगा, राइट? या फिर जितने भी अफसर्स है जो पोस्टेड है लेकिन उनकी फैमिलीज कैंटोनमेंट एरिया में रहती है, उनके लिए कुछ ना कुछ मेडिकल स्टाफ लगेगा. सो इस सारे मेडिकल स्टाफ के लिए ना अलग ही इंस्टीट्यूशन है विच इज कॉल्ड AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज. इट्स इन पुणे ओनली. बट अगर आपको AFMC करना है ना, अगर आपको AFMC करना है, बिलीव मी इट इज वेरी डिफिकल्ट देन एवरेज नीट कॉलेजेस. सो एवरेज नीट स्कोर से काफी ज्यादा स्कोर लगेगा तुम्हें AFMC टैकल करने के लिए. सो बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लो नीट, ठीक है? इफ यू आर देयर यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन AFMC. सो नीट का ही पढ़ाई होता है पूरा AFMC के लिए. एग्जाम भी सेम होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है नीट से भी, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड. और एनडीए में एज सच मेडिकल नहीं होता है, बिकॉज मेडिकल उन्होंने एक अलग एंटिटी बना के रखी है. सो वी डोंट हैव टू गो टू एनडीए फॉर मेडिकल. सो एनडीए में अलग ट्रेनिंग होता है और मेडिकल के लिए AFMC बना के रखा है हमने, राइट? उसके कोर भी अलग होते हैं, AMC कोर होते हैं, तो अलग अलग कोर होते हैं उनके. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू आर सपोज टू गिव AFMC एग्जाम फॉर इट. ये लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकते हैं. करेक्ट सर. Yes. Now question Mr. Pranav Pawar विचारते हैं कि is there any defense quota for children of servicemen? Not at all. That is the beauty of it. That is the beauty of it. ठीक है? Doesn't really matter you're rich, you're poor. Doesn't really matter what is your caste. Doesn't really matter what is your religion. Doesn't really matter whether your father is general of Indian Army or not. I have seen SSB boards के जो president थे उनके लड़के वही board से reject होते हुए मैंने देखे हैं. ठीक है? So you have to believe it when I say this. ठीक है? There's no such quota. If you have talent, you'll get selected. No quota as such for NDA. है ना? For this, अगर ऑफिसर बनना है तो there is no quota. उनके लिए कॉलेज अलग से होते हैं. मतलब जो ऑफिसर्स जाते हैं, पोस्टेड होते हैं, तो उनके लड़के यहाँ पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पूरा सदर्न कमांड जो है उनका हेडक्वार्टर पुणे में, इसलिए बहुत ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं पुणे में. तो उनके जो लड़के हैं उनके लिए अलग से स्कूल्स होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल्स बट नॉट कोटा फॉर बिकमिंग ऑफिसर्स. ठीक है? देयर इज नो सच कोटा. Correct. Now next question, what is the role of parents and teacher when their child or student prepare for NDA? Really nice question. और ये क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए बिकॉज आई एम अ टीचर माई सेल्फ. सो मैंने तो इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा सोचा है. लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट कि सर पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए. सो यू हैव टू बिलीव व्हेन आई से दिस, एनडीए जो एग्जाम है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, राइट? काफी लोग इजीली टैकल कर देते हैं बिकॉज उनमें वो क्वालिटीज होती है, राइट? जस्ट आई गिव यू अ सिंपल सिनेरियो. 8-8.5 लाख लोग रहते हैं, उनमें से 400 या 300, 350 से 400 लोग सिलेक्ट होते हैं एनडीए में. जेडब्ल्यू की बात करें तो कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं जो आईआईटीज प्रीफर कर पाएंगे, है ना? अपर आईआईटीज एंड लोअर आईआईटीज मिला के 10,000 तो कम से कम लोग जा पाएंगे. यहाँ पे 400 लोग होते हैं पूरे इंडिया में से. सो द एग्जाम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. तो सर इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, हमें तो भरोसा है ही नहीं हमारे लड़के पे, वो हमारा बात सुनता ही नहीं है, तो उसमें टैलेंट है ही नहीं. बिलीव मी, खुद के लड़के को अंडर एस्टिमेट करना, है ना, राइट? दैट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल. सो पेरेंट्स ने ये बात समझनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट. मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि मैं हर साल 80 का बैच चलाता हूँ, है ना? 80 के 80 बॉयज में एक बात कॉमन होती है, दैट इज पैशन, है ना? पैशनेट होते हैं वो, दे आर लाइक फुल्ली पैशनेट. उनके पेरेंट्स को मैं यही बताता हूँ, यू विल हैव टू हैव पेशेंस. काफी बार ऐसे होगा कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, काफी बार सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ही माइट नीड द अटेम्प्ट. सर लेकिन अटेम्प्ट करते करते अगर बाद में हुआ नहीं तो क्या? तो इवेंचुअली आप इंजीनियरिंग तो कर ही रहे हो, ठीक है? आप ग्रेजुएशन तो कर ही रहे हो. सो दिस वोंट कट आउट अदर अपॉर्चुनिटीज, है ना? बट एक बात याद रख लो, अगर वो एनडीए के लिए या फिर डिफेंस फोर्सेस में जाता है ना, द डिफरेंस, उसके पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस आएगा, उसके ओरिएंटेशन में जो डिफरेंस आएगा, वो कहीं नहीं आएगा. क्योंकि मैंने देखा है, मैं आई हैव बीन टीचिंग पीपल फॉर जेडब्ल्यू, है ना? काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आते थे जेडब्ल्यू में, सर आप मैथमेटिक्स सिखा दो. और मैंने काफी लोगों को जेडब्ल्यू क्लियर भी कराया हुआ है, राइट? मैंने एनडीए भी सिखाया हुआ है, जेडब्ल्यू भी सिखाया हुआ है.
आई हैव सीन अ डिफरेंस. जब एनडीए की बात आती है, जब नेशन की बात आती है, जब कंट्री की बात आती है, these guys, एनडीए बॉयज, दे आर इंस्पायर्ड, दे आर मोटिवेटेड, है ना. बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेवल होता है उनका, क्योंकि उनके सामने एक पर्पस होता है. जेडब्ल्यू वाले ओके सर, आप हमें नॉलेज पढ़ा दो, 3 कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के पढ़ा दिए, 4 कॉन्सेप्ट ये पढ़ा दो, विल गो अकॉर्डिंग टू इट. सो जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी कम नहीं होना चाहिए. ये पेरेंट्स ने स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए कि लड़के का मोटिवेशन लेवल कम ना हो. बिकॉज इफ यू कीप ऑन क्राइंग अबाउट द फेलियर्स, ही विल नेवर गेट अप, है ना. कभी ऊपर आने की कोशिश ही नहीं करेगा. इट्स बिकॉज कि सर मैं अगर ऊपर का सपना देख लूं, अगर मैं गिर जाऊं तो मेरे पेरेंट्स मुझे काफी ज्यादा ब्लेम करेंगे, राइट. सो अगर आपका सपना है वो सीईटी करे तो क्या प्रॉब्लम है. अलाउ हिम टू प्रिपेयर फॉर एनडीए करने दो. सीईटी तो होगा ही ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट, है ना. लेकिन वो कंपटीशन में जाके उसको टेस्ट तो आएगा कि कितना बड़ा है इंडिया, कितने टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में, राइट. सो कीप हिम मोटिवेटेड, गिव हिम ऑल द चांसेस ही वांट्स, है ना. आई हैव सीन मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी टॉप कैडेट्स है ना, एकदम टॉप क्वालिटी कैडेट्स जिनको हम बोलते हैं, जिनका परफॉर्मेंस एनडीए में भी काफी अच्छा था, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, वो टॉप कैडेट्स सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में ही हुए हैं सिलेक्ट, राइट. सो इट्स मोर लाइक गिव देम चांस, कीप देम मोटिवेटेड, राइट. This is very important. Motivation is like a good medicine, actually. Now this question is related to SSB interview. What type of questions are asked in SSB interview? Can you explain this with an example? I will club second question also. Apart from academics, do you academy work on other skills required for SSB? Can you repeat the second question? I'm not able. Yeah, apart from academics, do your academy work on other skills required for SSB interview? Obviously our focus is always that, right. Apart from academics, we keep on focusing on their personalities. We want them to stand. ऐसे ही नहीं होता कि सिर्फ हम एसएसबी कराते, ऐसे नहीं है. मेरे काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे, राइट. लेट मी गिव यू द एग्जांपल्स. आयुष सिंह हो गया, शुभम चौधरी हो गया, जो टीसीएस क्विज कंपटीशन में भी नेशनल विनर्स थे, राइट. सो बेसिकली क्विज कंपटीशन में भी वो नेशनल विनर रह चुके हैं. सो इट्स मोर लाइक देयर डेवलपमेंट मीन्स अ लॉट टू मी. You can by looking at me, you can say that I'm quite young to be a director and to be a founder, right. But we are one of the topmost institute in Maharashtra, not only in India, not only in Maharashtra but also in India. The reason is 100% hard work, है ना. मुझे अभी भी याद है, मैंने 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लेक्चर्स लिए स्टूडेंट्स के. So that is something which keeps me driving and keeps them driving as well, right. So let's move towards your question. What was your question again, to be very precise? SSB, the type of questions in SSB interview. Exactly. To be very precise, your question was what kind of questions do we ask in SSB? Do they ask in SSB? As I said, simple सी बात है, उन्हें बस ये देखना है कि what kind of मिट्टी are you, है ना, what kind of soil are you, यही देखना है उन्हें ये देखना है कि इस soil से मैं अच्छे मड़के बना पाऊंगी ना बना पाऊँ. So SSB में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आते हैं. So to be precise कि सर यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाएगा क्या, यही मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, नहीं, right. Let's say कि there's a student called Manan Gaur here, right. Let's talk about Manan. Suppose if Manan has a very live personality, he's very confident, his English is really good, right. So they might ask some questions जो उनका confidence level थोड़ा कम कर दे. But let's say there's another guy, let's say a guy XYZ, right. XYZ का confidence level बहुत कम है. तो first of all they'll ask him question which will cheer him up. पहले उनको वो confidence level बढ़ाएंगे, उसके बाद वो उनको क्वेश्चन पूछेंगे. तो line up questions for every cadet is very different, ठीक है. बट इट्स टोटली अराउंड योर पर्सनैलिटी, है ना. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, आपके प्रायोरिटीज क्या है, आपके चॉइसेस क्या है, व्हाट ड्राइव्स यू द मोस्ट. सो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही आएगा. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फेवरेट टीचर्स कौन से हैं, आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं. सो पर्सनली ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे होते हैं एसएसबी में, बिकॉज एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, है ना. आपका पर्सनैलिटी क्या है और रियल पर्सनैलिटी. इट डजंट मीन कि सर एकदम फ्लैशी इंग्लिश बोल के अगर मैंने एसएसबी दे दिया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा. नो, इट इज नॉट एसेंशियल, ठीक है. So actual personality आपकी क्या है वही देखना होता है. Thank you, sir. Now question from Vishwajit Patil. Hi sir, hi ma'am. I am studying in 8th standard, preparing for All India Sainik School entrance exam. So if I qualify that exam, so I get can I get the direct seat for army, or we have to give exam after 12? Okay, it's a good question. But let me tell you, there are hundreds of सैनिक स्कूल in India, right? But basically सैनिक स्कूल का मोटिवेशन क्या होता है, सैनिक स्कूल का पर्पस क्या होता है कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है,
वो inculcate करना इन बॉयज में बचपन से ही, right? There are good Sunny schools like Satara Sunny School, right? Then there is RIMC, there is Bhosla Military School. So there are good Sunny schools in Maharashtra or India, but if you get admission in Sunny school doesn't mean कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया. फॉर एग्जाम्पल अभी देयर वर सम फैबुलस बॉयज, अभिजीत कदम एंड आर्यन चिकालेकर, है ना, ये सातारा सैनिक स्कूल से लड़के मेरे पास आए थे. बेसिकली दे आर द टॉपर्स ऑफ सातारा सैनिक स्कूल. उन्होंने उनका 11th वहां पे किया. इन 12th दे केम टू मी, राइट? दे आर लाइक सर आवर पर्सनालिटी इज रियली गुड, वी कैन, फिटनेस इज रियली गुड, बट समवेयर डाउन द लाइन वी नीड एकेडमिक असिस्टेंस फ्रॉम यू. आई एंजॉयड माय टाइम विद देम. नाउ बोथ ऑफ देम हैव क्लियर्ड एनडीए. ठीक है, सो इट्स मोर लाइक अगर आप सैनिक स्कूल में हो, आप नॉर्मल स्कूल में हो, आप कहीं पे भी हो, देना तो आपको एनडीए. एज आई सेड, एनडीए में जाने के लिए यूपीएससी रिटन एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल्स, फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं से भी रहो फिर. ठीक है, इट वोंट चेंज द फैक्ट. सो इवेंचुअली आप सैनिक स्कूल में हो या कहीं पे भी हो, यू विल हैव टू गिव एनडीए आफ्टर ऑल. Sir, what are physical qualities need for NDA? Very less actually, very less. Usually क्या होता है guys, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हमें आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है तो हमें सलमान खान ही होना चाहिए. नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इजीली जा सकता है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट. डिफरेंट है, ठीक है? देयर आर जवान्स और देयर आर ऑफिसर्स. जवान मतलब जिनकी भर्ती होती है ना, उनकी कमी नहीं है हमारे पास. लाखों जवान है हमारे पास, लाखों, 12-13 लाख जवान है हमारे पास, राइट? एक होता है जवान, दूसरे होते हैं ऑफिसर्स. तो जवानों की हमारे पास कमी नहीं है, बिकॉज जवानों को सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड्स लगते हैं, राइट? इसलिए उनको भर्ती करना पड़ता है, उनको दौड़ना पड़ता है, उनको बॉडी बनानी पड़ती है, उनको सब कुछ करना पड़ता है. ऑफिसर इज समथिंग हु हैज टू बी मेंटली फिट. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा फिट हो, राइट, एनडीए का ट्रेनिंग होता है आपका 3 साल, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होता है 1 साल, उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग होता है 1 साल. 5 साल के ट्रेनिंग में कौन फिजिकली फिट हो नहीं सकता? समझ पा रहे हो, राइट? कितना भी अगर फैट पर्सन हो या फिर कितना भी अनहेल्दी पर्सन हो, 5 साल के ट्रेनिंग में किसी के, हर एक के एब्स आ जाएंगे, राइट? वही कन्विंस करता है ना काफी लोगों को, काफी यंगस्टर्स को वही कन्विंस करता है. सो इट्स मोर लाइक यू हैव टू बी मेंटली फिट. इफ यू आर मेंटली फिट, फिजिकल फिटनेस किसी का भी होता है, गधे का भी होता है फिजिकल फिटनेस. रोज सुबह 5 बजे उठाओ, दौड़ाओ, 6 महीने में फिजिकली फिट हो जाओगे, राइट? सो फिजिकल फिटनेस, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस, राइट? सो फिजिकल फिटनेस कितना लगता है? कुछ नहीं, एक राउंड अगर 400 मीटर का मार पाए, यू आर फिजिकली फिट फॉर एनडीए. ठीक है, यू कैन जॉइन एनडीए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल. मेडिकल कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट. मेडिकल और फिजिकल में फर्क क्या है बताता हूं मैं. फिजिकल मतलब क्या है, आप कितना एक्सरसाइज कर पा रहे हो, आप कितना दौड़ पा रहे हो, है ना, आप स्पोर्ट्स कितना खेल सकते हो. मेडिकल मतलब क्या है, आपका आईसाइट अच्छा है क्या, वेदर योर हार्ट इज गुड और नॉट, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, राइट? आपका जो वर्टेब्रा होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या. सो दे आर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स. सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि बालों से लेकर नाखून तक उसमें बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं. सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड, डोंट थिंक अबाउट इट. अभी ये सोच के फायदा नहीं है, ठीक है? एज फार एज फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, यू डोंट नीड एनी एज सच. थोड़ा बहुत दौड़ लो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? मेंटल स्ट्रेंथ. Yes, sir. Thank you so much. In chat box, we are getting the questions like students wants to join if your academy, then what can be the procedure for that? Okay, so basically every year after 10th मेरे सेशंस होते हैं काफी महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में काफी सैनिक स्कूल्स में मैं जाता हूँ. वहाँ पे मेरे सेशंस कंडक्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ. इवन आपको जो मिसकंसेप्शन था कि सैनिक स्कूल से ही डायरेक्ट एंट्री मिलती है क्या, वो मिसकंसेप्शन में उनके दूर करता हूँ. After 10th, you'll have to give the entrance exam for Yashotej Academy. इस साल के एडमिशंस तो वैसे फुल है, they are almost there, but still अगर आपको एनडीए प्रिपेयर करना है, you should always call, है ना? You should always call. We would like to assist you because कोरोना के वजह से हमने थोड़े कम ही एडमिशन लिए. अब if government permits us, we'll definitely give you admission in the upcoming time. आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. If you're mentally fit, again we said, है ना, sir my height is good. काफी लोगों को मैं बोलता हूँ, काफी पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर मेरे लड़के को आप एडमिशन दे दो. मैं पूछता हूँ क्यों? सर हिज हाइट इज गुड, राइट? अब हाइट से मैं फैन तो क्लीन करने के लिए नहीं बोलने वाला उनको, राइट? सो ऑल वी चेक इन रिटन एग्जामिनेशन इज योर मेंटल स्ट्रेंथ. इफ यू आर मेंटली फिट एंड इफ यू आर पैशनेट, है ना, पैशनेट बोल रहा हूं मैं, अगर पैशन है आप में तो आप कोई भी एनवायरमेंट कहीं से भी आ रहे हो विल सिलेक्ट यू, ठीक है? सो 10th के बाद यू आर सपोज्ड टू कॉल ऑन आवर नंबर, यू आर सपोज्ड टू रजिस्टर योरसेल्फ, और रजिस्टर करने के बाद यू कैन टेक द एडमिशन. Thank you, sir. The question been asked by Shubham, how to develop personality for NDA. Sir, one thing I just want to like give the information
You have mentioned some OLQS work on OLQS, right? You Right. have told us about the many personalities determination. They start organizing the events. Then you should be very social, physically fit. Adaptability is very important. Let Exactly. me tell you, this all the qualities I test in aptitude test. Exactly. Like the student who does this in 11th and 12th, there is one personality test is also all the qualities we can check for the students, and if they like lagging somewhere, right, so we can definitely improve on these qualities. So nothing is like we can't develop. Yes, you can develop all the personalities, but you just need to understand where exactly we are lagging. So if you can understand, Rina ma'am is extremely active. Guys, I would like to tell you one simple thing. These people have extreme clarity about the careers. Believe me, because I am the master of the defense forces, right? If you need any guidance for overall कि मतलब defense forces में join कैसे करना है, क्या करना है, I'm a good person for it. लेकिन overall, if you're confused about your career, I have to say, because I still remember when I met Mr. Dinesh Bhutra sir, the amount of clarity he has in his mind. ठीक है? कैसे होता है guys? When you lead something, right? जैसे मैं जब मैंने institute चालू किया था, it was never like कि मुझे academy बड़ा करना है या फिर बड़ी building लेनी है. It was always about motivation. It was always about guiding students. ये guidance बहुत important होता है. काफी बार ऐसे होता है कि आप में caliber कुछ और हो, right? आप में caliber कुछ और ही होता है, लेकिन आपको realize नहीं होता है. ठीक है? तो उसके लिए aptitude test जो मैम ने बोला है, you should take it. I'll tell you why. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड चिखली, है ना. मुझे कुछ पता नहीं था. मेरे सारे सीनियर्स इंजीनियर करते थे, इंजीनियरिंग करते थे. मैंने मस्त 10 में स्कोर किया, अच्छा स्कोर आया. मैं मैथ्स वाज एक्सट्रीमली गुड. ठीक है. सो 10th में अच्छा स्कोर हुआ, फिर मैंने 11th 12th किया, मस्त आईआईटी दिया, सब कुछ किया, राइट. इंजीनियर बना मैं. आखिर तक मुझे पता ही नहीं चला व्हाट आई वांटेड इन लाइफ. एंड नाउ आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट व्हिच प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर डिफेंस फोर्सेस. मेरे लाइफ में दूर दूर तक कोई डिफेंस में नहीं है, दूर दूर तक, मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर तक. ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो, है ना. फॉर दैट आई वुड रिकमेंड, अगर आपने नहीं लिया एप्टीट्यूड टेस्ट, यू शुड टेक इट. ठीक है. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एसएसबी के लिए क्या प्रिपरेशन करें, आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग. आई गेस ये जो वीडियो है ये YouTube पे भी आएगा मैम, राइट? yes sir, we are record. राइट. ये वीडियो YouTube में भी जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सर्च यशोतेज एकेडमी ऑन YouTube. वहां पे भी मैंने ऐसे ही एक करियर काउंसलिंग का वीडियो बनाया है, उधर भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया है. सो ये क्वालिटीज पहचानने की कोशिश करो कि सर ये इनिशिएटिव होता क्या है, ये सोशल अडेप्टेबिलिटी होता क्या है, ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहां से लाए. इफेक्टिव इंटेलिजेंस मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता. झाड़ू कैसे मार रहे हो ना, उसमें भी दिख सकता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है, राइट. सो ये जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज खुद में डेवलप करने की कोशिश किया करो. इट विल डेफिनेटली हेल्प इन एसएसबी, राइट. बट इफ यू आर रियली पैशनेट फॉर इंडिया या फिर अगर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, आई वुड रिकमेंड नॉट ओनली माय इंस्टीट्यूट. ठीक है. यू कैन ज्वाइन एनी अदर इंस्टीट्यूट, बिकॉज आप कंसिस्टेंट जो एनवायरमेंट में रहोगे. You don't have to join Yashotesh Academy. Eventually, our admissions are full. But अगर आपको करना ही है डिफेंस फोर्सेस, तो I would recommend कि choose any right institute for you. Because institute का importance क्या होता है? You'll always be into that specific kind of environment. वो environment जो होता है ना, उसमें रहोगे आप, है ना. You'll be always surrounded by people which are seeking knowledge about the defense forces. ठीक है? Who are not making the TikTok videos only, right? Who are actually seeking the knowledge. ठीक है? So वो काफी important है. Okay? Right. Thank you, sir. Actually, we have many questions in chat box, so but it's not possible to take each and every question. Yes, But most of the questions I have covered. Now I'm going to ask the last question, but before that, I will request parents, if you have any queries or any questions apart from this, you can reach to Tejas sir on his WhatsApp. Can you, sir, just give your WhatsApp number in chat box so that if they have any more queries, they can reach to your email ID or any WhatsApp number. If you can put, then that will be a great help actually. Sure. Yeah. So, everyone can note it down. The number is 8553. If you can put it in chat window as well. The number Yes, we have already put actually. Okay. Yeah. All right. So if you have any question, you can just WhatsApp me, right? I'll try my best to answer all of your questions. Yes, sir. Now, last questions. Jate, what tips would you like to give to students and parents watching this webinar? This is very important actually. Right. So I'm not pretty sure कि आप ये वीडियो देखने के बाद if you are motivated for defense forces or not, but I just recommend कि at least एक बार try करो exam. At least try this exam once and please consider this career option once.
क्योंकि ये ऐसा एक करियर ऑप्शन है, काफी लोगों को पता नहीं होता है कि हमें वो कैपेबिलिटी है, हम ये एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बाद में जाके पता चलता है यस वी आर एंजॉयिंग दिस थरोली, राइट? सो आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई हैव अ मैसेज स्पेसिफिकली फॉर आवर पेरेंट्स, राइट? आई विल एंड विथ माय स्टोरी. आई वाज अ वेरी एवरेज चाइल्ड, ठीक है, एज फार एज इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इज कंसर्न, है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक मार्क्स, है ना? इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन, मेरा कुछ मोटिवेशन था क्या लाइफ में, आई डोंट नो. मेरा कुछ इंस्पिरेशन क्या था क्या लाइफ में, आई डोंट नो. बट इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव समथिंग, है ना? कुछ ना कुछ होना ये काफी इंपॉर्टेंट है. पैरामीटर या फिर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होना या फिर कुछ ना कुछ मोटिव होना, वो काफी इंपॉर्टेंट है. सर मोटिव एवरेज रखे या कुछ बड़ा रखे, तो आई विल टेल यू ऑल द रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उनको मैं एक ही बताऊंगा, यू शुड ड्रीम बिग. एक बात हमेशा याद रखना, जो बड़ी बात है ना वो बड़े ही लोग करते हैं, जो निगेटिव बातें हैं ना वो छोटे ही लोग करते हैं. यू विल नेवर फाइंड अब्दुल कलाम स्पीकिंग अबाउट नॉट कंप्लीटिंग योर ड्रीम. कभी देखा है अब्दुल कलाम ने बोला कि नहीं नहीं तुम सपने कंप्लीट नहीं कर सकते? हैव यू एवर सीन, है ना, एनी अदर पीपल, कोई साइंटिस्ट ऐसे बोल रहा है कि नहीं नहीं छोटे सपने देखो? हैव यू एवर सीन? बड़े लोग हमेशा बड़े ही सपने देखने वाले हैं और एटलीस्ट ट्राई करेंगे. दे माइट फेल ट्राइंग, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू फेल ट्राइंग rather than having a very small dream for you. ठीक है? सो ड्रीम बिग. आप कोई भी चूज करो, फील्ड चूज करो, ड्रीम बिग. जब बड़ा सपना देखते हो, जब उसके पीछे मेहनत करते हो ना, वो मेहनत में आप जो सीखते हो, you may not learn these things, you may not learn those things while dreaming small, है ना? बड़ा सपना देख लो, फेल हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली लाइफ में आगे लेके जाएगा, ठीक है? आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स, है ना? मैं काफी ऐसे ग्रुप्स में हूँ जहाँ पे काफी बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज आते हैं, काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं. व्हेन आई स्पीक टू देम आई रियलाइज कि क्लैरिटी इतना ज्यादा होता है उनके लाइफ में, है ना? दे हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है और मैंने करना क्यों चाहिए. सो यू शुड नॉट बी इनटू इट. सो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आई जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग, ड्रीम बिग. जो स्टूडेंट्स लोग हैं सपना बड़ा देखो, जो पेरेंट्स लोग हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो कि वो सपना बड़ा देखें, राइट? दैट्स ऑल. Thank you so much, Tejas sir. Right. This like webinar, it like has its own importance, but I will definitely say thank you so much for sharing all your information, all your experiences, and all your like students' example. This will really motivate the children who are dreaming for this NDA course and defense course. So thank you so much for your time. I know you have tied up with many coaching and new admission, but still you took a time for all our parents. So thank you so much once again, Tejas sir. Pleasure is all mine. Key points I can just like summarize the Tejas sir, which has mentioned orientation is very important. Dream high, dream should be big. We need to know ourselves because inner fire is very important. Give your 100% and work on all the mentioned OLQs from Tejas sir. Think like a scientist. It's not compulsory to be a scientist, but think like a scientist. You should be able to find the reason for all the questions. You should express yourself. Effective communication is very important. Determination. Then start taking initiative, because this is all about your leadership qualities, we can say. Courage is important. Healthy cooperation with all. Sense of responsibility, physically fit, social and adaptability. These all qualities are very important, I can say. So just believe in yourself and start doing your work. This is a very important thing. So thank you, Tejas sir, once again. And now we have a webinar, last webinar we can say before Diwali on Sunday. Dr. Arvind Nathu sir, the senior scientist from NCL and ICER, is going to deliver a webinar on career opportunities in pure sciences. So don't miss this webinar. This is equally important webinar for all the parents and students. So be there on Sunday. We will share all the details. But before that, if you are not a part of our WhatsApp parents group, so you can join our parent group. We have put the link in chat box. You can join the group actually. So you will get all the educational updates also, webinar updates also, and your queries can be solved in those groups. So thank you for your all active participation. Thank you, Tejas sir, once again. Yes, thank you. Pleasure is all mine. Jai Hind. Yeah. Bye. Good night. Good night.